I signed up 3 clients and now I have recurring revenue. So the first month itself I'll recover all the cost of living here, coming here, spending money here. तो वो दिमाग बहुत important है अगर आपको यहाँ पे आना है कि आप उसका ROI कैसे निकालोगे. You talking to Ashneet Grover and sharing 35 lakh rupees a month. So being a millionaire, as you mentioned in your videos, do you think is that enough money to sustain in the US? And you'll realize कि 2 लाख पर मंथ पे आकर के आपको दुनिया की सारी वो बेसिक चीज़ें मिल रही हैं. ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए तो वो नहीं मिलेगा. Slow success builds character, fast success builds ego. Yeah. Do you think it has impacted you? तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ईशान शर्मा के होटल में. ईशान शर्मा का होटल. एक दिन हाँ, और ही का होटल होगा. अब देखो कितना इन द मोमेंट रहता है. He is so involved with us. अभी भी फोन पे नहीं रहता. अभी भी आपने देखा just like that. ये दोनों होटल एप्पल ने बुक करे हुए हैं पूरे और 3-4 डेज. वाओ. पूरे होटल सारे रूम्स बुक बाय एप्पल. क्या बात है. सारे रूम. तो यहाँ पे आपको फ्री ड्रिंक्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको फ्री खाना मिलता है, लंच भी फ्री मिलता है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर. सब कुछ खराब होता है, खाना खराब है यहाँ का, बट रियली या बाकी बहुत बढ़िया है सब कुछ. एंड सारे एप्पल क्रिएटर्स हैं इधर. एंड दिस इज द एप्पल्स प्रोवाइडेड होटल रूम. डैशिंग. इट्स सिक यार. अच्छा ना. हाँ तो 2 बेड दिए हैं. 2 बेड है, इंसान एक ही है, दूसरे का क्या करूँ. Subletted. So, Ishan, what was the most memorable part of this whole US trip? सबसे memorable part was actually going to Howard and standing on the hallways where Barack Obama, where Mark Zuckerberg, where all the biggest people that we know studied. हम लोग फिर एक हार्वर्ड की क्लास में ट्रेसपास भी किया हमने, which was also memorable. Wow. We were not supposed to do that. वो बेसिकली बच्चे बाहर आ रहे थे उस क्लास से, तो बाहर आए तो दरवाजा खोला उन्होंने, तो हम उसमें घुस गए फिर. So and then वहाँ पे हार्वर्ड वाले बच्चे हमसे पूछते हैं कि अच्छा डू यू नो वेयर टू गो, वेयर कैन आई फाइंड दिस प्लेस. बता भी नहीं, जैसा यहाँ देखे दाएं लो फिर अगले है उससे roundabout चले जाओ. So that was really cool. My friend flew from Florida to New York and then he took me around all the places. That was insane. The best thing is कि I was fortunate to have great people with me. So SF में I had a couple of friends. I think you met Sakshi, yes. You met Puneet. You couldn't meet Pranav, but Pranav has been really helpful as well. He helped me with the visa. I went to New York. I met tons of my friends over there. Umang, Ruchi. These are all people जो हर दिन मेरे साथ थे. They were like अब चलते हैं, हाँ अब कहाँ जाना है बताओ ईशान, चलते हैं साथ में चलते हैं. और मतलब कभी भी उन्होंने कोई ऐसा अकेला नहीं छोड़ा. There was no one day जहाँ मैं अकेले सब कुछ कर रहा हूँ. Wow. So thank you so much, Ishan, for meeting me and teaching me so many things. How you network, it's commendable. You know how you are so good with talking to people. Your personality, you've grown a lot. I've seen you from the last 4 years. So first of all, can you share 3 most influential people in your life who have made you who you are? And आप मेरी लाइन मेरे को बोल रहे, like I'm supposed to say कि I've learned so much from you and your videos. I was telling that my mom and me, like after my 12th exams and after my IIT JEE advanced exam, we used to watch your videos. So I want to take a gap year and figure out my life मुझे करना क्या है, because IIT JEE इतना अच्छा नहीं गया था मेरा. So I was thinking of that, but I did not end up doing that. I got into bits. But there was a phase in which every day I used to watch your videos कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आप opportunity ली, scholarship and everything that goes into studying abroad. But it's unreal like meeting you in person. Thank you so much for taking all the time and coming all the way here in California on the day of the Apple event from Georgia. Atlanta, Georgia. Absolutely. आपने बुलाया and we had near misses like 2022, 2023 and I was like 2024 is the year. No matter what, I'll not let that miss. So thank you so much for that. Thank you. आपका question था, who are the 3 most influential things or people who have made who you are? Because I've seen your personality like skyrocketing like in the last 2 years. I think they are not people, they are books. So there's an incredible book by Naval, which is all about his ideology, right? There's a guy who has written his book, which is basically converting his Twitter thread, which is about how to get rich without getting lucky, into a book format in which they explained every part about how do you build wealth and how do you build distribution and how do you win in life basically. तो वो एक किताब है
जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अबाउट लाइफ इन जनरल. कंपनी बिल्डिंग के बारे में मुझे सीखना था, तो आई लर्नड इट फ्रॉम एंथोलॉजी ऑफ बालाजी. सो दिस इज अनदर वेरी कूल बुक फ्रॉम द सेम ऑथर, एंड ही रोट दैट बुक अबाउट बालाजीज थॉट्स ऑफ बिल्डिंग अ न्यू कंपनी फ्रॉम स्क्रैच. राइट, तो आप कैसे लोगों को हायर करते हो, कैसे आप नए आइडिया पे काम करना चाहिए आपको, कैसे आपको फंड लेनी चाहिए, कैसे आप आगे चल के ग्रो कर सकते हो सेल्स में एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. हाउ शुड यू एज अ फाउंडर ग्रो विद द कंपनी टू मेक श्योर कि आप, जैसा नॉर्मली होता है फाउंडर एक कंपनी बनाता है, बड़ी कंपनी होती है, फिर उसको निकाल देते हैं, फिर CEO आके रन करता है, बिकॉज बड़ी कंपनी चलाने के लिए वो फाउंडर इक्विप नहीं होता, बिकॉज उसने शुरू करी है कंपनी, डजंट नो व्हाट इज इट लाइक टू रन अ बिग कंपनी. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उस किताब से सीखी हैं. बट लास्टली एक किताब जिसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया अबाउट कंटेंट इन जनरल इज फास्ट, चीप एंड वायरल. इट्स रिटन बाय द Ixigo's marketing head. As a CMO of Ixigo. Ixigo is a platform जहाँ पे आपने देखी होंगी फ्लाइट्स बुक इंडिया में बहुत पॉपुलर. if you've seen it, तो उनके बहुत वायरल कैंपेन्स गए हैं एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट यूज़ किया है. तो मेरे लिए मैं जेनरिक बुक नहीं पढ़ता, मतलब आप पता है आपको वो सारी एंड्रू कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, आपको सारी पता है. बिल्कुल. राइट, बट फॉर मी दीज बुक्स हैव हेल्प मी आउट अ लॉट. तो वो जो किताब है एंड में मैंने बताई जो, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अबाउट हाउ डू यू क्रिएट ऑर्गेनिक कंटेंट विच गेट्स शेयर्ड. तो जैसे आज भी मैंने अपना एप्पल इवेंट में गया तो आई हैड अ क्विक लुक एट द iPhone 16. मैंने वो वीडियो बनाया एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एट द एंड, मैं कोने में बैठ करके मेड द रील एंड पब्लिश्ड इट एट 1 o'clock in the night in India. मतलब मेरे लिए दिन था यहाँ पे, बट इट वाज 1 o'clock in the night in India. एंड अभी उस पे अभी आई थिंक 8-9 घंटे हुए, इट इज एट 400K व्यूज. Excellent. इट विल कंटिन्यू टू गेट मोर व्यूज. सो वो सब मैंने सीखा फ्रॉम दैट बुक. Wow. People really talk about, you talking to Ashneet Grover and sharing 35 lakh rupees a month. So being a millionaire, as you mentioned in your videos, do you think is that enough money to sustain in the US after coming with the wealth mentality of India? Did you feel rich enough coming to the US? How was your reaction financially? I feel like US में आके I just appreciate India a lot more, क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सारी लग्जरीज हैं जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. एज सिंपल एज हैविंग अ हाउस हेल्प. राइट, वहाँ पे इंडिया में आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, जिससे आपका टाइम बहुत सेव होता है. द सेम इज़ नॉट ट्रू हियर. बट देन यहाँ पे लोग वो चीज़ें खरीदते हैं जिनसे उनका काम आसान हो जाए. दिस लाइक अ रोबोट क्लीनर जो मैंने देखा बहुत सारे घरों में रहता है यहाँ पे, विच इज़ लाइक ऐसे अपने आप को गोल गोल घूमता रहता है पूरे घर में, साफ करता रहता है वो घर को, तो वो झाड़ू लाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर उसकी वजह से. तो इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे लोग करते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स एक्सपेंसिव एंड इट इज़ खुद सब कुछ करना पड़ता है. तो वो एक लग्जरी है जो इंडिया में है और यहाँ पे नहीं है, तो यू अप्रिशिएट अ लॉट मोर. मैं 45 डेज से यहाँ पर हूँ. सो आई फील लाइक 1 million इज डेफिनेटली नॉट इनफ over here. Obviously I think any person who lives in SF probably would have made it like $1 million, and it doesn't really matter much क्योंकि like everything is so expensive here, right? यहाँ की मैं ride Uber पे I take like normal cabs and all, तो एक कैब $20-30-$40 की रहती है. यहाँ पे कुछ खाना है तो एटलीस्ट $30 से $50 $100 तक का पड़ता है एक मील. राइट, तो आप हर दिन कम से कम 25-30 हज़ार रुपये तो उड़ा देते हो ऐसे ही, आपको पता भी नहीं चलता. तो ये 25,000 कुछ लोगों का महीने की सैलरी होती है इंडिया में, बहुत लोगों के लिए. सो दैट इज़ इनसेन. मतलब आप यहाँ पे इतने खर्चे हो रहे हैं अगर, बट देन अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो वेरी क्रेजी. तो हमने पिछली मेरी जो कंपनी है मार्केट, अब मैं बता रहा था आपको ओवर डिनर, कि हमने पिछले 1 महीने में वी क्लोज 3 clients, विच इज़ गोइंग टू गेट अस एटलीस्ट $10,000 ऑफ रेवेन्यू every month. Right, so I came here once, I signed up 3 clients, and now I have recurring revenue. So the first month itself I'll recover all the cost of living here, coming here, spending money here. तो वो दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको यहाँ पे आना है, कि आप उसका ROI कैसे निकालोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत है, बट आप अगर हाँ ही करने आओगे यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा. राइट, फिर आप बोलोगे कि अरे सब महंगा है सब कुछ. Like everything is an opportunity in the way you think about it. Like लोग आपको comment करते हैं कि यार ये कोई कोर्स निकालेगा to make money through content. हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों कि लोग बोलते हैं कि ये तो कोर्स बेचता रहता है. मैं कुछ कोर्स नहीं बेचता भाई. मेरे पास एक भी कोर्स नहीं है. आई विश होता मेरे पास, बट मेरे पास नहीं है कोई कोर्स.
क्योंकि मैंने जेन्युइनली, मुझे जो भी आता है अबाउट फ्रीलांसिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस, ब्रांडिंग, मैंने सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में डाला हुआ है. मेरे 50-50 मिनट के वीडियोस हैं जो लोग जाके देख सकते हैं, एंड दे कैन लर्न एवरीथिंग फॉर फ्री, एवरीथिंग आई हैव लर्न इन माई होल एक्सपीरियंस. मुझे आपको चार्ज नहीं करना, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, मेरा एक बिजनेस है जो ऑलरेडी काम कर रहा है. It's a 25 people company in which we work with companies and we help them grow on social media. तो I don't need to sell you anything. मेरी 2 किताबें हैं जो आप 200 रुपये में खरीद सकते हो Amazon पे जाकर के, जो मैं उसको जीरो नहीं कर सकता. Amazon है, किताब प्रिंट होती है, तो you need to pay for that, right? So that is all that I have to sell you if you really want to make it that way. But I don't have anything else to sell. पता नहीं लोग क्यों क्या सोचते हैं. So what is the business model of Ishant Sharma? Like, how do you get clients? Do you think you pitch using your brand to get clients, or just being मैं आपको a content creator is आपको enough? एकदम प्योर में बताता हूँ कि क्या किया था हमने SF के उसमें, ठीक है. तो SF सैन फ्रांसिस्को आने से पहले, US आने से पहले 1 महीना हमने पूरा, मेरे और मेरे को-फाउंडर ने बैठ के कंपनीज छांटनी शुरू करी. ऐसी कंपनीज जो कि AI में है, जो कि फाइनेंस में है, जो कि अभी सीड हो गया उनका फंडेड, बट नाउ दे आर स्टार्टिंग टू ग्रो. बट वी ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट वेरी मैच्योर कंपनी जो सीरीज बी है उससे आगे हो, क्योंकि वहाँ पे फिर दे आर टू बिग एंड दे हैव टू मेनी रेगुलेशंस एंड टू मेनी पीपल, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑल. वी डोंट वांट दैट, वी वांट क्विक एग्जीक्यूशन. सो हमने ऐसी कंपनीज निकाली जो AI में होंगी और जो इस स्टेज में होंगी, सीड फंडेड से सीरीज A तक की होंगी. एंड देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग लाइक अ डेटाबेस ऑफ ऑल ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग इन दीज कंपनीज. हमने उनके सारे चैनल्स एनालाइज करे, एंड हमने उनको फिर ईमेल भेजा कि आई एम अ क्रिएटर, आई हैव बिल्ट दिस मच ऑफ अ चैनल, एंड आई रन दिस कंपनी कॉल्ड एज मार्केटअप, जहाँ पे हम लोग कंपनीज को हेल्प करते हैं विद सोशल मीडिया. वीव हेल्प्ड 40 कंपनीज जनरेट बिलियंस ऑफ impressions. And so I am coming to SF and was researching for new companies, came across yours. Would love to meet you for coffee and chat more about how is it going. It's just a very simple open-ended email. ये हम बहुत सारी कंपनीज को भेजते हैं, इनमें से कुछ कंपनी रिप्लाई करती हैं, फिर हम फॉलो अप भी करते हैं, फिर उसमें से कुछ कंपनी और रिप्लाई करती हैं, एंड देन वी सेट अप मीटिंग्स विद ऑल ऑफ देम, राइट. सो दैट इज हाउ दैट बेसिकली वर्क्स. फिर जब मैं लैंड हुआ तो आई हैड लाइक प्रीटी मच ऑल ऑफ माई डेज बुक्ड. सो 30th of July से 9th of August तक every day I had at least 3, 4, 5 meetings. कम से कम 3, but properly 5, 6 meetings तो थे हर दिन. And these are like 10-10 मिनट की दूरी पे मीटिंग्स हैं, जहाँ पे जाकर के I'm either meeting the founder or meeting the CMOs, जो मार्केटिंग हेड है. तो उनको जाकर के बैठा, उनके साथ बात करी कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ से हो. कई सारे लोग इंडियन थे तो वो इंडियन कनेक्ट बहुत आ जाता है. मैंने इतना ट्रैवल किया है तो लोग कोई बोलता है मुंबई से, मतलब मैं मुंबई से ही हूँ, राइट. कोई बोलता है दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, बिकॉज आई हैव लिव्ड सो मच इन ऑल द सिटीज, तो आई कैन रिलेट वेरी वेल. सो वो करके उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ. मैं जैसे आस्क कि आप क्या कर रहे हो, कैसे बिल्ड कर रहे हो, एंड देन दे ऑटोमेटिकली से कि अच्छा आप कैसे हेल्प कर सकते हो मेरे को, राइट. सो यू जस्ट रीच आउट टू पीपल, सेट अप अ मीटिंग विद देम, उनके साथ बैठ के जस्ट बात करो कि क्या कर रहे हो आप, राइट. आप ग्रो कैसे कर रहे हो, अच्छा आपका ICP कौन है, आपको जब भी ट्रैक्शन आ रहा है कहाँ से आ रहा है. ICP एक आइडियल कस्टमर पर्सोना होता है कि अगर आप कुछ बना रहे हो तो आप किसके लिए बना रहे हो. अगर आपका प्रोडक्ट है तो वो बिजनेस के लिए है, कस्टमर इंडिविजुअल के लिए है. इंडिविजुअल कौन सा, उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, उसका डेमोग्राफिक क्या होगा, वो क्या करता होगा, कितना कमाता होगा, वो सारी एक डिटेल होती है ना, तो वो बताएंगे वो. फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा अभी आपने ऑर्गेनिक में क्या किया है, अब आपने ऐड चलाते हो तो ऐड में कैसा आपको रिटर्न आ रहा है, आपको ऑर्गेनिक क्यों नहीं कर पा रहे हो आप आज तक, अच्छा आपने शुरू किया है तो कैसा चल रहा है उसमें, मेरे को आपको मेट्रिक्स दिखाओ मैं वो खोल करके. सो आई जस्ट आस्क वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन उसके अंदर, एंड उससे आई अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है यहाँ पे इस क्लाइंट को हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं. एंड वो ऑटोमेटिकली आस्क कि अच्छा हमारी ये प्रॉब्लम है. बिकॉज द बेस्ट थिंग इज सेल्स में ये एक बहुत बेसिक रूल है कि यू नेवर टॉक मोर देन 10-20% ऑफ द टाइम. अगर 1 घंटे की टॉक में आप ही 40 मिनट बोल रहे हो तो आपका कट रहा है. सो आपको क्या करना है, आप उसके बाद बैठो सामने वाले बंदे के साथ, उससे क्वेश्चंस पूछो, राइट. वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही बताएगा आपको, राइट, अगर प्रॉब्लम है जेन्युइनली. एंड दैट इज द बेस्ट क्लाइंट, क्योंकि अगर वो इतनी बार प्रॉब्लम को मेंशन कर देगा तो आप जब सोल्यूशन बताओगे तो ऑटोमेटिकली ही विल जस्ट ग्रैब इट ना. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी. तो आई एट मैक्स आई एम टॉकिंग फॉर 15 minutes फॉर द होल 1 hour कॉन्वर्जेशन. 10-15 मिनट मैंने बात करी, then I'm asking questions कि अच्छा ये कैसे किया, वो कैसे किया.
एंड देन दे ऑटोमेटिकली आस्क क्वेश्चंस. तो उस तरह से पहली कॉल होती है जो मैं करता हूँ खुद. ये मैंने कॉल कर दी, देन दे आर लाइक अच्छा ठीक है मेरे को और डिटेल्स भेजो तुम्हारी कंपनी के बारे में, कैसे करते हो, व्हाट डज इट लुक लाइक. तो विल लाइक विल सेंड यू 1 पेज डॉक्यूमेंट नोशन पे बना करके एंड विल राइट डाउन कि हम कैसे काम करते हैं आपके साथ. तो वो मेरी टीम करती है. मेरा को फाउंडर बैठा है बैंगलोर में, ही इज़ अ रूममेट फ्रॉम माई ओन कॉलेज एंड ही वर्क्स ऑन द एग्जीक्यूशन, ऑन द ऑपरेशंस पार्ट, ही हैंडल्स ऑल ऑफ दैट. मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, लोग घूम रहा हूँ, गेड़ी मार रहा हूँ, बट ही इज़ एक्चुअली वर्किंग ओवर दिस दैट आई एम एबल टू अफोर्ड ऑल ऑफ दिस. सो आई विल गो बैक टू हिम एंड आई विल टेल हिम कि अच्छा ये क्लाइंट से मिला मैं, अब हमको इस पे और काम करना होगा. सो देन वी सिट डाउन एंड देन वी एनालाइज देयर यूट्यूब चैनल कि अच्छा कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, कौन से कीवर्ड पर उन्हें करना चाहिए फोकस. देन वी क्रिएट अ 1 पेज डॉक्यूमेंट कि अच्छा आपने इस तरह से हम आपको हेल्प कर सकते हैं, दिस इज हाउ मच इट विल कॉस्ट, राइट. फिर हम उनको पिच करते हैं कि देखो आपका बिजनेस में हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं, ये आपका कीवर्ड है, हम इस पर हेल्प करेंगे बनाने में ऑर्गेनिक कॉन्टेंट, दिस इज वॉट वी विल डू, दिस इज हाउ मच वी विल चार्ज. फिर देर लाइक ठीक है करते हैं, मीटिंग करते हैं एक और बार. देन दे डू 1 more मीटिंग इन विच वी क्लोज देम इफ दे आर इंटरेस्टेड. वरना वो बोलते हैं सोचते वाले क्लाइंट कभी क्लोज नहीं करते. करेक्ट. मतलब करते हैं बट लाइक इट्स मच बेटर टू फोकस ऑन क्लाइंट जो कि सेकंड उस पर दे आर डन. एंड मतलब like one client that I closed last week itself, I went there, it was a 10-minute meeting. I met in person and it was just 10 minutes and it was $2,000 revenue for the month. That's it. And that would add ARR of $24,000 a year. 20 लाख हो गया, right? So मतलब मैं आपको इतना बता रहा हूँ खुल के क्योंकि it is actually possible, right? मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा, राइट. तो दैट्स जस्ट हाउ आई वर्क. सो दैट्स माई बिजनेस इफ यू हैड टू कॉल इट लाइक दैट. अदर देन दैट आई वर्क विद ब्रांड्स, द ब्रांड विच आई विल ट्रस्ट एंड आई विल नो कि अच्छा ये अच्छा ब्रांड है विद विच आई कैन वर्क. आई वर्क विद HP टू क्रिएट दीज 3 AI वर्कशॉप्स इन बैंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई, इन विच आई मेट माई ऑडियंस इन पर्सन एंड आई टॉट देम कि आप AI को कैसे यूज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में. सो आई डिड दैट. सो इस तरह से आई वर्क विद लॉट्स ऑफ कंपनीज. अभी आई एम विद एप्पल राइट नाउ. So I went for the Apple event. I made the vlog as well. तो उस तरह से काम चलता रहता है. That's basically like थोड़ा लंबा बोल दिया मैंने, but Excellent. that's how it works. It's a great business strategy and like काफी influencers who are motivated by you, they think like it's a great idea to create business in which you're passionate about. And I think because of that, many marketing agencies have started who are content creators. What do you think about them as a competition or as a healthy competition? What do you think? आई थिंक एक बहुत बड़ा डिजीज है टू बी अ क्रिएटर एंड स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज लाइक एज अ क्रिएटर आई एम थैंकफुल कि आई हैव अ को फाउंडर जो हु डजंट थिंक फ्रॉम द क्रिएटर माइंडसेट. ही डज क्रिएट सम कंटेंट, बट एक क्रिएटर माइंडसेट क्या होता है कि अच्छा चलो मैं आज कुछ बना देता हूँ जल्दी से कंटेंट. शॉर्ट टर्म थिंकिंग बहुत होती है. आई थिंक मैं अभी भी है मेरे में वो, तो आई एम वर्किंग ऑन रिमूविंग दैट. तो आई एम नॉट परफेक्ट, फार फ्रॉम इट, बट मेरे को एक खुद एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ अबाउट माई सेल्फ कि आई एम ओनली थिंकिंग इन द नेक्स्ट 1 month कि अभी इस महीने क्या करना है, राइट. वेयर एज इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिग बिजनेस और यू वांट टू बिल्ड एनीथिंग बिग, you have to plan it out for the years. Correct. Even decades. You look at China became what it is because their ruler was like bhai hum yahin pe rahenge, we don't care about election or anything, but we'll build. So it was built over decades and decades of hard work and one goal. They had no elections to worry about and no manifestos to make. But anyways, the point is to sit down and actually create a bit of a long-term plan, जो कि ज़्यादा क्रिएटर नहीं कर पाते because they themselves don't know कब व्यू आने बंद हो जाएंगे and फिर क्या होगा. वो किक मिलता है ना, like they just want to run around views. अब next कब लाना है, they don't think कि 10 years से क्या रिजल्ट लाना है. देखो मैंने अभी एक ब्रांड क्लोज करी for my own channel. It's a AI tool which I'll be talking about on my channel. So that was $6,500. Right now that is good money, but that is like once, like lump sum hai. This is not recurring. Which the deal I told you about, that is a recurring thing, right? Even though it sounds कि $2,000 per month ही है, but it will turn out to be $24,000 for the year. आगे और होगा फिर, we'll sell more. So वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग लोगों में नहीं होती. They would never want to meet twice with someone to close a $2,000 client. They'd rather close $6,000 client, but वो एक बार में ही मिलेगा बस वो उनको. Right. तो वो थिंकिंग नहीं होती है. और ऑल्सो क्रिएटर्स आर नॉट एबल टू बिल्ड अ बिगर टीम बिकॉज उनमें वो बायस सा रहता है. अगर आपको टाइम मिले तो आप जाके Amazon प्राइम पे उर्फी जावेद का देखना, जो सीरीज
डॉक्यूमेंट्री आई है उनके बारे में. तो क्या है, if you'll notice, no disrespect or anything, like she's giving all of the responsibility for business and everything to the agency, right? Like she's like a typical, like the most influencer you can find, which is fine, which works for her. But you'll notice कि वो उनको blame कर रही है कि अच्छा ये लोग ऐसे नहीं करते, ये लोग वैसे नहीं करते. भाई, you have to take responsibility in your own hands. Right. There's a brilliant article by Paul Graham called Founder Mode. Yes. Right, So which everyone should read. So you need to change from manager mode to founder mode. भाई मैं खुद करूँगा. राइट, अभी मेरा एप्पल इवेंट खत्म हुआ, मैंने खुद एडिट करके वीडियो अनलिस्ट कर दी, एंड अभी फिर 3 घंटे में लाइव भी हो गई वीडियो. सो दैट इज फाउंडर मोड. दैट इज नोइंग कि भाई, लाइक यू नॉर्मल पीपल थिंक कि आप एक रथ पे हो, राइट, एंड योर गोल इन रनिंग अ बिजनेस इज टू हायर पीपल हु कैन एक्चुअली टेक कमांड ऑफ द हॉर्स, एंड सो दैट यू कैन चिल इन द बैकग्राउंड. Right. That is the biggest misconception. The reality is that you as a founder are the horse itself. आप खुद ही हॉर्स हो, आप पीछे नहीं बैठ सकते. आप हॉर्स हो एंड दे विल स्टीयर यू, दे विल कीप यू अकाउंटेबल. Right. And I learned about this by a friend who was just telling me this example. But the basic idea is कि you are the person. अगर आप नहीं करोगे कुछ भी तो फिर कुछ भी नहीं होगा. So you have to take accountability and you have to get started. Most leaders don't do that because they don't have the skill set and they don't have the time to learn it because they're focused too much on the short-term money. Last month I missed most of my deals. I didn't care about them because I was like, मेरे को यहाँ बैठ करके यहाँ पे जो लोग हैं उनका mindset मेरे को absorb करना है. मुझे उनसे सीखना है कि कैसे करते हैं वो बिजनेस यहाँ पे, कैसे सोचते हैं वो अपनी लाइफ के बारे में, कैसे सोचते हैं वो अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. राइट, यहाँ पर ऐसा क्यों है कि इतना कम काम करते हैं. ऐसा दिखता है ना हमको कि लाइक वीकेंड में घूम रहे हैं, हाइकिंग पे जा रहे हैं, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू बिल्ड सच मैसिव कंपनीज हियर. वरना इंडिया में लोग पूरे दिन काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू बिल्ड एज बिग ऑफ अ कंपनी दैट पीपल बिल्ड ओवर हियर. ऑब्वियसली इसके रीजंस भी हैं, बट द मेन पॉइंट इज दिस कि आपको अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी होगी फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. So your strategy is excellent. I think that's what people want to do as well. Creator एक intent से बनना जरूरी है. That whether you want to long term become a businessman or you just want to become a creator, एक intent long term बहुत जरूरी है, and it works out if you have an agency, but you have to have that energy in yourself. But what advice you would give to, let's say, a creator like me? You know, I don't run a business. I'm just happy. मैं कैसे एडवाइस दे सकता हूँ? आपसे चाहिए मेरे को एडवाइस. No. Okay, let's say like I am like a typical creator representing India. Okay, so who has just YouTube channel, happy with ad revenue and little bit brands. What advice you would give to build something out of it? क्योंकि दो ही steps दिखते हैं what people see: business, course, or build an agency. आपको समझना होगा कि कोर्स वाला जो माइंडसेट है दैट इज गुड फॉर द शॉर्ट टर्म, विल मेक यू मनी शॉर्ट टर्म, बट आगे जाकर के इट्स नॉट अ वेरी स्केलेबल थिंग, है ना. तो कोर्सेज वाले माइंडसेट से आपको अलग हटना होगा, राइट. इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू बिल्ड समथिंग दैट सस्टेन्स, दैट ग्रोज आगे चल करके. एंड कोर्सेज में क्या होता है कि यू विल नेवर बी एबल टू चार्ज अ लॉट, क्योंकि आप इंसेंटिव आपका अलाइंड है कि लोग आपके कोर्स खरीदते रहें, जबकि लोगों का इंसेंटिव है कि मुझे एक्चुअली में जॉब मिले, राइट. एंड लोग को चाहिए वादा कि आप मुझे जॉब दिला दोगे, और जब भी लोगों ने जॉब दिलाने वाला वादा किया तब तक उनका खत्म हुआ है पूरा बिजनेस जो भी उन्होंने किया है बिल्ड. यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी बिग कंपनी, देयर इज ISA एग्रीमेंट दैट यूज्ड टू हैपन, इनकम शेयर एग्रीमेंट, कि हम आपके को जॉब दिलाएंगे, आप हमको इनकम शेयर करोगे. लोगों ने जॉब दिलाई, कोई किसी ने भी इनकम शेयर नहीं करी. एंड इंडिया में इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन द US कि अगर आपने वो साइन किया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू पे देम अ पार्ट ऑफ योर इनकम. इंडिया में इट्स मोर लाइक अ लूज थिंग कि हाँ करो नहीं करो, तो मतलब इट्स लाइक दैट, यू कैन नॉट इन्फोर्स इट ऑन देम apparently. So that's the point that people should understand. So course नहीं चलेगा, but जो चीज़ चलेगी for me I think is going to be products, right. अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ जाओ कि अच्छा मेरी ऑडियंस अपने दिन में क्या करती है, एंड आपके वीडियोस क्यों देखती है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, और मैं उनके लिए इसके अराउंड क्या बना सकता हूँ, सो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू. तो एवरी डे, मतलब ये मैंने नहीं किया है, मैंने किया था पिछले साल, बट आई हैव नॉट डन इट प्रॉपरली, बट आई रियली वांट टू डू इट बिकॉज लाइक फॉर मी दैट इज द लास्ट लाइक फ्रंटियर विच इज लाइक लेफ्ट, टू बिल्ड एंड लॉन्च प्रोडक्ट्स
and see how the traction goes and then just see where to go from that. मेरा दोस्त है अभी उसने कुछ एक YouTube कैप डिस्क्रिप्शन टाइटल जनरेटर बनाया and he was selling it to people in US and he sold it right now for like 200k USD. Excellent. his app, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसने सब कुछ खुद से बनाया. He just used like ChatGPT and उसके ऊपर बना करके रैपर उसने बेच दिया दूसरे कंपनी को and he's working on that. ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं. ऐसे 18, 20, 25 साल के लड़के होते हैं जो बना के बेच देते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक पता नहीं होंगी, you will never act on it and you'll always be stuck in that loop कि अच्छा अगली वीडियो क्या बनाऊँ, how do I go viral and all. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस आपको, जैसा मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको रिस्पेक्ट के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए एंड नॉट फॉर द व्यूज़. ये मेरे एक दोस्त है अंश मेहरा, जिनका बहुत अच्छा कंटेंट है, आप सबको देखना चाहिए. मैंने उनसे सीखा है इसके बारे में. एंड मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है इन चेजिंग व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर पॉसिबल. एंड दैट इज़ गुड. मतलब यू कैन सी द नंबर 8.5 लाख लाइक फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे एंड एवरीथिंग. बट उससे क्या होता है कि जो एक जेन्युइन ऑडियंस होती है ना, जो आपसे कुछ सीख के आपको फॉलो कर रही है, जो आपके बारे में जानती है अच्छे से, जो आपको रिस्पेक्ट करती है, वो कम होगी. लाइक इट वोंट बी 8.5 लाख फॉलोअर्स और 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. तो कुछ बहुत सारी हवा वाला कंटेंट होता है आजकल जो लोग बनाते हैं. सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट एंड हाउ टू सेपरेट बोथ ऑफ देम. आई हैव केप्ट अ हेल्दी मिक्स नाउ कि आई डू लाइक if I am uploading 10, तो उसमें से 8 would be like information dense shareable content and 2 would be ऐसा कुछ top of the funnel type content. And that has been working out well for me, so I just want to stick to that. Totally. But yeah, Audience, optimize for respect is most important. Totally, and audience should appreciate how much dedication you give. For example, like I've seen Ishan, like, you know, he would give a lot of time in tweeting, a lot of time on LinkedIn, and fully focused on content. When the days come and when times come, you are actually focused with us too. For example, the first day I met you, you were actually into us. Today is an exception. I agree. I'm not trying to be sarcastic. ठीक है, हमने आज बहुत मजाक किया कि बहुत ईशान सारा दिन फोन पे रहता है. But reality is, when days come, you have to be focused. You have to prioritize. But when days are like you have to network, he's completely into and within exactly. us. And last question is like, how much is too much money for you? मेरे को लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ मतलब नहीं है. बिकॉज द थिंग इज कि यू विल रियलाइज आफ्टर मेकिंग 1-2 लाख अ मंथ कि यू डोंट नीड मोस्ट ऑफ द मनी. देयर इज अ वेरी गुड वीडियो ऑन ABTV's यूट्यूब चैनल which they recently made, which is basically about people in India and their income brackets. तो एक बंदा जो कि महीने का 15-20 हज़ार कमा रहा है, एक बंदा जो महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, फिर एक बंदा जो कि महीने के 2 लाख कमा रहा है, फिर एक बंदा जो कि महीने के 2 करोड़ कमा रहा है. तो इन सब के इनकम ब्रैकेट में इनकी लाइफ कैसी होती है इंडिया में, कितने पैसे सेव करते हैं, कहाँ स्पेंड करते हैं, कितनी उनको लग्जरी मिल पाती है, वो आप देखने को मिलेगी. बहुत बहुत प्यारी वीडियो है, शुड गो वॉच दैट. एंड यू रियलाइज कि 2 लाख पर मंथ पे आकर के आपको दुनिया की सारी वो बेसिक चीज़ें मिल रही हैं. ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा राइट. बट उसका कुछ अंत नहीं है जी. बट जितना भी आपको मिल सकता है आपको वो मिल रहा है उसमें 2 लाख पर मंथ में. सो वंस यू गेट टू दैट नंबर, देन इट ऑल बिकम्स अबाउट द इम्पैक्ट एंड व्हाट यू वांट टू बिल्ड. सो आई क्रॉस दैट नंबर व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, राइट. दिस इज लाइक 2021 and then I never looked back on that. So October 2020 में जब मैं second year शुरू किया था मैंने, is when I made my first 1 lakh per month. Right, I did that while I was teaching on Unacademy. Plus I was working as a video presenter at Able Jobs, which is the YC company. So ये दोनों करके I made over a lakh that month, and that was insane because मेरा सपना था कि मैं कॉलेज के एंड में वो अमाउंट कमाऊंगा जो मुझे दिखा रहे थे सब लोग यूट्यूब पे कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब होगी तो आपको इतना मिलेगा. I was making that much in second year itself, and so I realized कि like now my bubble has popped. I was in a bubble, so I came out of that and realized कि यार life can be much bigger, and it's only up from here, right? So I just went all in after reaching that number, and I got super hungry to see कि अब what else can I do? What bigger things can I achieve? That's when I started my company Marketup and have been working on that. So I think that's the most important thing to understand.
Yeah, because lot of people say that you became successful at 20. There's a quote. The quote is which Arinder told me: slow success builds character, fast success builds ego. Yeah. Do you think it has impacted you? एब्सोल्युटली, बट मेरे को लगता है कि लाइक माई सक्सेस अभी सक्सेस आई नहीं है, और जो भी आई है वो 4.5 साल हो गए हैं. मतलब इट माइट फील कि मैं भी 20 साल का ही 23 राइट नाउ, एंड 4.5 साल काफ़ी टाइम होता है. एंड आपको रियलाइज करोगे कि किसी भी इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करना तो कम से कम 5 साल आपको लग के करना पड़ेगा काम वो. तो आई हैवंट इवन रीच्ड लाइक दी पीक, तो बहुत दूर है, राइट. सो आई एम स्टिल एट द 10-20% मार्क फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. सो अभी काफ़ी आगे जाना है, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि आई गॉट एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज़, राइट. मैं अपनी किताब लिखी, मैंने पब्लिशर अमेजोन पेंगुइन पब्लिशर मिल गया. आई गॉट टू इंटरव्यू ऑल द बिगेस्ट फाउंडर्स इन द कंट्री. यहाँ यूएस आया तो यहाँ पे सब लोगों ने खुले हाथ से स्वागत किया. आई गॉट टू शूट पॉडकास्ट विद सम ऑफ द बेस्ट पीपल ओवर हियर. सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट. बट आई ऑल्सो नो कि दिस अ बिग फैक्टर ऑफ लक इन्वॉल्व इन एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे. अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ बिकॉज एप्पल ने मेरे को इन्वाइट किया है, राइट. अगर मैं यहाँ पे नहीं हो तो मैं कहीं और बैठा होता, राइट. मैं अपने नॉर्मल जो मेरे बैचमेट्स हैं मेरे कॉलेज के, वो बैठे हुए हैं अभी, वो कुछ जॉब अब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, या जॉब मिल गई है तो दे आर जस्ट लिविंग द लाइफ दैट दे हैव. बट आई वांट टू डू समथिंग बिगर, सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट. What goals Ishant Sharma has right now? गोल यही है कि मैं अगले 1 करोड़ लोगों को मेरी उम्र के इंस्पायर करूँ कि अपने जो आपके ड्रीम्स हैं उनको आप कैसे अचीव कर सकते हो. एंड मैं उनको एक पॉसिबिलिटी दिखाऊं कि अगर मैं कर सकता हूँ. मैं खंडवा में बॉर्न हुआ था. खंडवा इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश नियर इंदौर, एंड आई मेड इट हियर डूइंग अ पॉडकास्ट विद हरनूर, coming to the US. So why can't you do the same? That's my goal, to inspire the next generation of people. Excellent. And any estimation of how much the US trip cost is? Like that's the biggest question asked on Twitter So for you. अभी 45 days हो गए हैं. I think this is not a right estimate because I have been fortunate to have friends जिनके घर पे मैं I could stay. They were very welcoming कि आप घर पे आ जाओ, घर पे रुको, घूमते हैं हम लोग साथ में and all that. So उस हिसाब से was good, but I think it would have easily crossed like 5-6 lakh, 7 lakh. Great, yeah. You are really good at managing. He's really good at networking, and I think. But again, like it's very good budget. I spent all of this. अगर मैं घूमने आता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता. I knew from the start कि I'm not here for travel. I'll travel in Bali. I'll travel in Singapore. I'll travel in Japan. I won't travel here. ऐसे घूमने नहीं आऊँगा. I'm not that rich to ऐसे घूमने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे. I'm here for work. So as I said, I closed deals, and I got the money back multiple times. Excellent. Thank you so much, Ishant, for your time. Learned a lot as always, and let's hang out more. Thank you. Thank you. आप दिल्ली आओ, अपन चलते हैं दिल्ली में, व्लॉग बनाते हैं, and it'll be fun. Totally. Thank you. Tripod number 1, एक tripod जो है। $10 का ट्राइपॉड है विद अ फोन. हाँ, लेना तो आप लेके जा सकते हैं यहाँ से यूएस से. वैसे तो इंडिया में भी सस्ता ही मिलेगा. दूसरा सेटअप, दूसरा एंगल ही है. What do you think about it? Very cool. मैंने बोला था ना, you'll be surprised. हाँ, चलो आ जाओ, बैठो यार. Have a seat. Be my guest in your own house. In your own hotel. In your Apple room, be my guest. Today I've had Apple sweets, I've had Apple coffee, I had Apple everything. Only need Apple girl. So, आप तो कॉपी नहीं कर सकते, आप तो शूट